We're going to talk about the fruit of the Holy Spirit today. And some of you might have already know, तो आज का वचन है वो है goodness के आधार के ऊपर, जो है भलाई चंगाई के ऊपर. So we are going to talk about the goodness and healing. So Galatians उसका 5, उसका 22 और 23 नंबर हम वचन पढ़ते हैं. कोई हिंदी में अगर पढ़ सकता है. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. पर आत्मा का फल ये है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी. हालेलुया. नरमाई, संजम, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਆਮੀਨ. So the Holy Spirit produces this kind of fruit in our life: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Hallelujah. जब हम लोगों के जीवन में देखते हैं तो ये जो फल है ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में आते हैं. हालेलुया. When we see in people's life, these fruits are only from the Holy Spirit. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए जो ये गुडनेस है, ये भलाई है, इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है? What is the meaning of the goodness, the fruit of the Holy Spirit, goodness for you? हालेलुया. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई बता सकता है गुडनेस का मतलब क्या है? What is the meaning of goodness? नेकी. नेकी. आमेन. कोई और? गुडनेस शब्द में उसका मतलब है भलाई और चंगाई. हालेलुया. So मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, ये गुडनेस है, ये आपके लिए क्या मतलब रखता है? So this goodness, what is this goodness means to you? आए हम बाबा जी से पूछते हैं, ये गुडनेस है जो उसका क्या मतलब होता है? हालेलुया. Can we ask बाबा जी, Babaji that what is the meaning of goodness? तो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा अभी. Go to the next slide. So ये अभी समय लग रहा है. हालेलुया. ये गूगल पापा सभी के पास होगा. We all have access to this. So देखते हैं गूगल पापा जी क्या बताते हैं. ये बताते हैं कि गुडनेस जो है, that's the quality of being morally good or virtuous, a belief in a basic goodness of mankind. So जो इंसानियत दी एक चंगियाई आ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗਾਪਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਚੰਗਿਆਈ ਆ, Moral ਕਿਸੇ ਦਾ value. ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਭਲਾਈ. अंदरों जो अंदर से फीलिंग आती है, जो अंदर से चंगाई आपके बाहर निकलती है. हालेलुया. That is what's goodness. हालेलुया. This is the goodness, good thoughts for others that comes from deep down from your heart. तो चलिए अब गूगल ने तो बता दिया, अब हम पवित्र कलाम से खुदा के वचन से देखते हैं गुडनेस का क्या मतलब है. Now we will look from the word of God. So we will look at Romans chapter 12 verse 2. रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय दूसरा नंबर वचन, उसमें से हम पढ़ेंगे. I have English in front of me, so I will read it quickly. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ. थोड़ा सा और गहरे में जाते हैं और इसे ज़्यादा खोलेंगे. जो गुडनेस है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक अच्छा इंसान होना या किसी से अच्छा व्यवहार ही करना. So the goodness is, it's not only meaning that you're kind to someone, very goodness, and from inside you're very as a human being good person. पर इसका मतलब ये है कि हम ऐसे दिल के साथ जिए जो प्रभु यीशु को महिमा देने पाए. And also it means that we should live with this heart that leads for the glory of Lord Jesus Christ. और जिसके द्वारा जो है आप शुद्ध होंगे, आप सच्चे होंगे और आप करुणा के साथ और आप सच्चाई के साथ लोगों की मदद और सहायता करेंगे. By with you will be able to help people with kindness, with truth.
So बाइबल में गुडनेस का अर्थ सिर्फ नाइस होना नहीं है, इससे भी ज़्यादा एक गहरा है. There is more than being nice of the meaning of goodness in the Bible. So इसका मतलब ये भी है कि हम ऐसे जिए जो परमेश्वर के स्वभाव को हमारे जीवनों से रिप्रेजेंट करे या दर्शाए. It also means that we should be living as a representative, that we have the nature of Jesus Christ in us. और उसके साथ ही हम शुद्ध, ईमानदार और हम धार्मिक तरीके से अपनी परेशानियों से निकलते हैं. And also we come out of all the troubles with the righteousness of God. So इसमें हम देखेंगे कि यूनानी भाषा में जो है, जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ है गुडनेस के लिए, वो क्या है. What is the Hebrew word, the Greek word used for the goodness? So जो ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में जो शब्द यूज हुआ है वो है एगास्थोने. हालेलुया. So the Greek word is agastone. So आपकी स्क्रीन पर आपको लिखेगा, ये दूसरी स्लाइड में है. So this is a Greek word जो है goodness के बारे में, moral quality, uprightness of heart and life. Uprightness मतलब है कि जो हम दिल से और अपने जो है ईमान से सिद्ध तरीके से एक इंटेग्रिटी के साथ चलते हैं. हालेलुया. कई बार जब आपका मन चाहे पर आपके अंदर एक इंटेग्रिटी होती है कि ये सही है, ये नहीं है, उसके द्वारा जब हम चलते हैं. Sometimes your heart tells you what is right, what you should be doing, so we go by that desire. हालेलुया. So इस शब्द को एक मोरल इंटेग्रिटी और एक्टिव काइंडनेस के जो हम रोजमर्रा के जीवन में जो है नेकी करते हैं, उसमें भी इसका जो है वो अर्थ पता लगता है. We also says that the moral integrity and in our daily life. So जो biblical goodness है is a spirit produced quality of living in a way that reflects God's character. So इसमें ये है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को और उसके चरित्र को रिप्रेजेंट करते हैं. By doing what is right, क्या हम करते हैं कि जो हमारे दिल में डाला जाता है पवित्र आत्मा की वजह से, जो सही है वो चीजें करते हैं. and loving what is pure, एंड वो चीजों को प्यार करते हैं जो शुद्ध हैं. and acting in love even when it's difficult. जब कभी बहुत मुश्किल होता है कि किसी को प्यार करना, फिर भी हम दिल में होता है कि परमेश्वर ने डाला है कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए. So जो भलाई होती है ये बड़े बड़े कामों तक ही नहीं होती. So the goodness is not for like very big works. ये हमारे छोटे छोटे कामों में भी पता लगती है. And also even when we do small tasks, we can show our goodness. हालेलुया. वो हम कैसे बताते हैं? How can we tell? जब हम सोचिए कि जब हम वॉलमार्ट में ग्रोसरी लेकर आए हैं और हमारी कार्ट जो है वो भरी हुई है. Sometimes, okay, imagine that we are getting the grocery, we're doing the grocery from Walmart and our cart is full. So हम अपना सारा सामान अपनी गाड़ी में जो है वो उतार लेते हैं और उसके बाद जो है वो कार्ट है, हमारे मन में आएगा क्या मुझे ये 1 किलोमीटर चलकर मुझे कार्ट वापस रखनी पड़ेगी या चाहे मैं ये यहीं छोड़ दूं. So now we unload the cart and maybe the cart station is far and then we are thinking we should just leave the cart here. I should not be just walking 1 kilometer just to deliver the cart over there. क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही जो चंगाई है वो हमारे अंदर से आती है. क्योंकि अच्छे तो सारे ही जन अच्छे हैं. हालेलुया. पर जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है तो आपके मन में आएगा कि नहीं, मुझे ये जो मेरी कार्ट है ये मुझे वापस छोड़ के आनी चाहिए. इसलिए नहीं कि कोई देख रहा है, पर इसलिए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर से वो निकाल रहा है. So this goodness is not, comes from the Holy Spirit, from the bottom of your heart. So the Holy Spirit will tell you that you should return the cart to its proper place, and it's not like everybody is good, but these things comes from the Holy Spirit. और आप सोचिए कि आप ग्रोसरी लेने गए हैं और आप लाइन में खड़े हैं और आपकी जो कार्ट है वो जैसे आपने ऑलरेडी वापस रख दिया है, पर हम बैक जाते हैं पर आपकी कार्ट जो है वो फुल है ग्रोसरी के साथ और आपके पीछे एक इंसान खड़ा है. So sometimes imagine that you are in the lineup in the Walmart and your cart is full, but someone is standing behind you. और उसके पास सिर्फ 2 आइटम्स हैं. And he has only 2 items. तो अब आप क्या करेंगे? What would you do?
आप कहेंगे कि मैं पहले अपना पे कर दूंगा फिर ये करता रहेगा। I will just think that I'm gonna pay first and he's gonna come after. सी इसमें कुछ गलत या सही कुछ नहीं है, There's हालेलुया। nothing good and bad in it. पर अगर आपके अंदर से आएगा कि नहीं उसके पास 2 आइटम्स है, मैं उसे जाने देता हूँ पहले, तो वो आपके अंदर से आत्मा ये चीजें निकलवा रहा है। And if you think that that person should go because you're gonna take longer, so you will ask that person to go, and this is not gonna come only like that. It's gonna come by the Holy Spirit from your heart. बताना चाहता हूँ कि हम सब बहुत अच्छे हैं। You all are very good. We are very good. जब इन छोटी छोटी बातों में आता है, when we look at ourselves and then we really know कि हमारे अंदर से वो भलाई और चंगाई निकल रही है कि नहीं, हालेलुया। जब कोई नहीं देखता, आपका परमेश्वर आपको देख रहा है, हालेलुया। बताना चाहता हूँ शायद इसका क्रेडिट आपको ना मिले, पर फिर भी आप करेंगे कि नहीं, हालेलुया। But when we analyze ourselves in these small tasks, then we will see that are we good or are we not. It's not about good and bad, but this is only from the Holy Spirit, and we see. आप चर्च में हैं, आपने देखा कि गार्बेज नीचे पड़ा हुआ है, आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? कोई आपको बोलेगा तो नहीं, पर अकेले हैं आप कमरे में, नीचे गार्बेज पड़ा है, आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? ये दर्शाती है कि आप असल में चंगे हैं या चंगाई बाहर से है। So when you see you're in the church and there is garbage debris on the floor, and would you be like, would you decide to take it and put it in the proper bin, or would it's going to show the goodness from your heart? Is it only from outside or from your heart? So ऐसा है कि जो अच्छाई है वो हमारे बाहर भी है, पर जो अच्छाई की मैं बात कर रहा हूँ, जो चंगाई की भलाई की बात कर रहा हूँ, वो एक पवित्र आत्मा का फल है जो आपके अंदर से खुदावंद पवित्र आत्मा जो है वो निकालता है बाहर। So the That is what we're goodness, looking at. so the goodness we are talking about, that is from the heart, which Holy Spirit will put into your heart. It's not only from outside. और सुन लीजिए कि आत्मा का फल पवित्र आत्मा के बगैर नहीं मिलता है। And the fruit of the Holy Spirit will not come without Holy Spirit. जब आप आत्मा में भरे होगे तो ये फल उबर के बाहर आएंगे। तो जहाँ पर गार्बेज गिरा है कोई और उठा रहा है तो आप पहले जाकर उठाएंगे, हालेलुया। अगर कोई वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर में वो बूढ़े इंसान की मदद नहीं कर रहा तो आप जाकर वहाँ पर मदद करेंगे, और आप अपनी कार्ड ही नहीं अपने पड़ोसी की कार्ड भी वापस रख के आएंगे, हालेलुया। These are not the things that in normal we expect or that elevate us anywhere. ये चीजें ये नहीं जो हमारा किरदार बहुत ऊंचा कर देती है, जो हमारा नाम बहुत ऊंचा कर देती है, पर ये आपका मसीह में एक कैरेक्टर और उसके एक फल का निर्धारित करती है। Amen. When you're filled with the Holy Spirit, then the fruits are gonna overflow. So the things that you're supposed to be doing, you will be running for to do those things. अगर आत्मा में कभी भरे ही नहीं तो फल कभी बाहर ही नहीं आएगा। एतवार के एतवार आप चर्च में आ ही जाएंगे, वचन सुनी जाएंगे, कलाम को देखी जाएंगे, बाइबल कभी खोली नहीं होगी, 2 साल बीत जाएंगे, 5 साल बीत जाएंगे, फिर आप वही मसीह बन के रह जाएंगे जिसके अंदर आत्मा का फल नहीं। So if you're not filled with the Holy Spirit, you will be just a believer that comes on to the church on Sunday only, and if you have not even opened your Bible, you're just gonna be a Christian called by name only, not a believer that who follows the Lord Jesus Christ. And मैं आपको बताना चाहूँगा इस वचन के अंत में मैं जाऊँगा बताऊँगा आपको कि क्या इसका विषय था, क्या विशेष मतलब है इस वचन का जो मैं आपके साथ आज बांट रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ पिछली बार जब मैंने कलाम को शेयर किया था तो मैंने फल की और जड़ की बात की थी, हालेलुया। किसी को याद है? जड़ के बगैर जो है वो फल कभी नहीं आएगा, हालेलुया। अगर जड़ नहीं है तो फल कभी नहीं होगा। अगर जड़ कट गई, जड़ खत्म होगी तो फल भी खत्म हो जाएगा। जड़ आपकी किसमें है? मसीह यीशु में है, हालेलुया, हालेलुया। I would like to tell you the deep meaning of the fruit of the Holy Spirit. If you remember last time I told you from the Word of God that if there is fruit, there should be root. If there is no root, there should be no fruit. मैं ये नहीं कह रहा कि पवित्र आत्मा के बगैर जो चंगे काम कर रहे हैं वो चंगे काम नहीं हैं, जब वो बुराई हैं। I'm not saying that if someone is
doing good deeds without Holy Spirit and they are not good deeds? बहुत लोग हैं जो दया दिखाते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे कामों के ऊपर, अच्छे कर्मों के ऊपर विश्वास करते हैं। So many people, they believe in good deeds. वो यीशु को जानते भी नहीं है, पर फिर भी वो अच्छे काम कर रहे हैं। They don't even know Jesus Christ, but they know all the good things. पर पवित्र आत्मा कलाम बताता है कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई मिलती है, उस चंगाई में एक अलग ही फर्क है। That goodness that is from the Holy Spirit, that is totally different. वो बदलेगी नहीं अगर आप शहर भी बदल लें। That will not change if you change the city. वो बदलेगी नहीं अगर आप काम भी बदल लें। That will not change if you change your work. वो बदलेगी नहीं चाहे आपका देश भी बदल जाए, It will not change if you change your country. चाहे आपके हालात बदल जाएं, If your circumstances change, वो बदलेगी नहीं it will not change. अगर आपके अंदर वो आत्मा का फल है। If you have the fruit of the Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. वो सिर्फ बाहर से नहीं होता, पर वो अंदर से हमें बदलता So है। this fruit, it's not from only outside, but it will change you from the inwards. और हमारी पवित्र आत्मा मदद करता है उन चीजों को करने के लिए जिन्हें हम सोचते हैं कि पॉसिबल नहीं है। And the Holy Spirit will help us to do all those things that we think that it is impossible for me to do. दुनिया में लोग बहुत ही नेचुरल है कि लोग अच्छे काम करते हैं, It is natural that other people in the world, they try to do good things. पर जो पवित्र आत्मा भलाई पैदा करती है वो एक फल है। And the Holy Spirit who put the goodness in someone's heart, that is goodness. अगर आपके अंदर फल है तो आप परमेश्वर की जो है सेवकाई कर रहे हैं, वो बहुत ही विजिबल होता है। And that goodness is a fruit, and when you are serving the Lord, then it will be visible in your character. Hallelujah. In short, I want to make it short. So मैं बताना चाहता हूँ कि yes, people can do good things without the Holy Spirit. In short, I would like to say that लोग अच्छाई कर सकते हैं बिना Holy Spirit के। But the kind of goodness that comes from the Spirit is deeper. It reflects God's heart. जो हम परमेश्वर के दिए हुए फल अच्छाई भलाई से करते हैं, वो परमेश्वर के दिल को रिप्रेजेंट करता है, ना कि सिर्फ एक अच्छाई इंसान की को। not only Human the kind. goodness of humankind. हालेलुया। So हम देखते हैं प्रभु यीशु अच्छे काम और अच्छे कामों के बारे में क्या कहते हैं। Now we will see that what Lord Jesus Christ say about the good deeds and the goodness. हालेलुया। खुदावंद यीशु अच्छे कामों को जरूर मान्य देते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो किस दिल से और किस सोच से किया गया है। Lord Jesus, He appreciate all the good deeds and good works, but He also thinks and analyze from what kind of heart and what kind of thought in your mind you have done it. किसी को पता है वचन में लिखा हुआ है कि खुदावंद हमारे दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। We know that Lord Jesus, He knows the deep thoughts of our hearts. So दिल में क्या है वो मैटर करता है। What is in your heart that That's what matters. matters. And Matthew 5 उसके 16वें को खोलेंगे, अगर किसी के पास है तो जल्दी से पढ़ दे। I will read it in English because I have it in front of me. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। Hallelujah. And this is what Jesus is talking about. खुदावंद यीशु अच्छे कामों के बारे में, अच्छे कर्मों के बारे में ये बताता है कि इंसान को नहीं पर तुम्हारे परमेश्वर को जो जलाली बादशाह है उसे महिमा मिले। So here Lord Jesus says that whatever the good works, good deeds you do, that should lead glory to Lord only. और हम इन चीज़ों को इसलिए ना करें कि हम लोगों को और औरों को इम्प्रेस करें और देखें कि और लोग क्या कहेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। We should not be doing all the good things to please people. So इसके लिए हम मत्ती से पढ़ेंगे Matthew chapter 6 verse 1. It says that be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven.
ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਫਲ ਨਹੀਂ। I believe, मेरा विश्वास है कि खुदावंद का आत्मा आपसे बात करेगा, हालेलुया। We believe that the Spirit of the Lord is talking to you. और इसके बाद इंसान के जहन में एक और सवाल आता है कि can we find God through good works or good deeds? क्या हम परमेश्वर को पा सकते हैं अपने अच्छे कामों से या अच्छे कर्मों से? Another question that rises is, can we find God with our own deeds? I want to tell you the truth. मैं तुम्हें सच कहना चाहता हूँ, No is the answer. हम नहीं कर सकते। No is the answer. हम पवित्र कलाम में से देखेंगे। We will go from the word of God. हम परमेश्वर को सिर्फ मसीह यीशु से ही जान सकते हैं। We can only know our God, Father God, by Jesus Christ only. Because in John 14:6 उसमें लिखा है that I am the way and the truth and the life and no one can come to the Father except through me. So John यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 नंबर वचन में लिखा है, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। that no one can come to the Father without me. ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अब देखेंगे हमारे अच्छे कर्म क्या करते हैं। So now we will see what these good deeds that are own, what happens. उससे पहले मैं एक वचन से पढ़ूंगा। I'll read from the word of God. I'm giving you so many verses today. So Ephesians chapter 2 verse 8 or 9. Chapter 2 verse 8 and 9. ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨੀਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰੇ। किसी के पास हिंदी में है? किसी के पास? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। Do we understand? जो परमेश्वर को पाना है, जो मुक्ति पाना है, ये किसी के काम के द्वारा नहीं, ये खुदावंद के द्वारा एक तोहफा है जो हमें मिला है। हालेलुया। It does not matter. So the salvation is not from good deeds, it's from the Lord. हालेलुया। So जो आपकी मुक्ति है, अब आपको ये मुक्ति के ऊपर चलना भी पड़ेगा, इसके लिए काम भी करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। इट्स नॉट हमने कुछ ही नहीं किया कि हमें मुक्ति मिले, पर हमें मुक्ति मिल चुकी है और हमारा फर्ज है कि हम इस मुक्ति को बचा के रखें। हालेलुया। We have the salvation already, but to save this salvation, to keep this salvation, we have to work for it. And this is out of syllabus now. जो मुक्ति है उसका मतलब ये नहीं, वो आपको लाइसेंस नहीं देता कि आप फिर से गलत काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप माफी मांग लेंगे और प्रभु आपको माफ कर देगा। हालेलुया। दिस इज नॉट व्हाट सैल्वेशन मींस। हालेलुया। आत्मा जो है वो आपको अंदर से बदलता है। जब आपके अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा, तो वो आपको इन चीजों से दूर करेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए खुद अपने आप को, अपनी जरूरतों को, अपनी डिजायर्स को मारते हैं, तब हम खुदावंद की मुक्ति के ऊपर चलते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम गंदी पिक्चरें देख सके, इसका मतलब ये नहीं हम गाली गलौज करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम चुगली और निंदा करते रहें और प्रभु के पास हम फिर भी जाएंगे। हालेलुया। I want to tell you this, we have to be faithful. हमें परमेश्वर के साथ वफादार होना पड़ेगा इस मुक्ति के लिए। हालेलुया। जो हमारे कामों के लिए नहीं मिली, पर परमेश्वर की ओर से तोहफा है। हालेलुया। Now the salvation, you have to work for it. It is not that if you are already saved, your sins are forgiven, you can sin again, you can do all those bad works, and then you can just ask the God to forgive, but you have to work on it. इसका मतलब ये भी है कि हम बार-बार, कई बार इन पापों में गिरेंगे, और परमेश्वर का प्रेम ही इतना है कि खुदावंद हमें फिर से उन चीजों से निकालता है। हालेलुया। There are going to be challenges, but the grace of God is always on our lives and He always will save us. को बताएंगे आगे जाकर कि जो बीमारियां हैं,
वो कैसे हमारे जीवनों में काम करती हैं। हालेलुया। We will also in further discuss that how the sickness works in our lives. आपको बताना चाहता हूँ, ये इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा and then I will try to translate it. Good works don't lead us to God, but God leads us into good works. हालेलुया। जो चंगे काम हैं, जो चंगे कर्म हैं, वो हमें परमेश्वर की ओर नहीं लेकर जाते, पर परमेश्वर हमें चंगे कामों की ओर लेकर जाता है। This is the truth. This is the truth. हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी की गवाही सुन रहा था, and they were talking about this stripper in she came to this conference, और खुदा के कॉन्फ्रेंस में आई थी वो स्ट्रिपर, हाँ। तो वो वहां पर जब आई तो उसे अपने मन में एक एम्बैरेसमेंट थी, क्योंकि लोग जो हैं सभी मसीह लोग हैं। Everybody knows how to love everyone like Jesus does, but nobody was there to accept her. किसी ने उससे बात भी नहीं की, किसी ने उसे अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं किया। So I was watching this testimony. This stripper came to this conference, so there was all believers, and everybody knew how to love, but no one accepted her. और वो उसने कहा, जब पास्टर ने उससे पूछा तो पास्टर को पता था, क्योंकि उसके ऊपर मसा था खुदावन का, उसे पता था ये क्या कर रही है। उसने कहा कि उसने जब पास्टर से पूछा कि क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए कि मैं बार बार ये मेरा प्रोफेशन है, मैं बार बार ये चीजें करना चाहती हूँ, क्या मैं स्टिल यीशु को जान सकती हूँ, क्या मैं स्टिल चर्च आ सकती हूँ, क्या मैं ये काम कर फिर भी कलीसिया में आ सकती हूँ। और उस पास्टर ने जो कहा उससे उसका जीवन बदल गया। So here, this stripper, she went to pastor and then asked the pastor that she is this is her profession, so she should be doing it. She wants to come to Lord. What she should do? और उसने कहा कि तू जैसी है तू आई जा, जो तेरा मन करता है तू करी जा। हालेलुया। And the pastor said that however you are, you can come to the Lord, and whatever your heart says, you should do that. Sometimes हम ये नहीं देखते कि अंदर लोगों के क्या है, क्या उनके दिल में चल रहा है। हम दूर से ही वो बैरियर बना के रख लेते हैं, हम दूर से ही वो जजमेंट बना के रख लेते हैं, हम दूर से ही कहने दे देते हैं कि तुम ये गलत काम करे, तुम वो करे, तुम ये करे। अरे मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप गंदगी में भरे हुए हैं, क्या आप नहाकर साफ होंगे? जहां आप साफ होकर फिर जाकर गंदे होंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर यीशु के पास जब आप आते हैं तो आप अपनी बुराइयां लेकर आते हैं, इसलिए नहीं कि आप साफ होकर उसके पास जाएंगे और उसे मानेंगे, इसलिए क्योंकि वो आपकी गंदगी को दूर करेगा। हालेलुया। So here what the pastor said that changed this girl's life, and here is a thing that if you are clean already, then you're gonna clean again. But if you are dirty, you can only come to Jesus Christ, and He is gonna cleanse you from inside. तो आपको बताना चाहता हूँ, आपको साफ होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मसीह साफ करना जानता है। Because our Lord Jesus Christ know how to cleanse from inside, so you have to come to our ये ना Jesus. सोचे कि कोई जज कर रहा है, उनका जज वो बैठा है। हालेलुया। कलाम भी बताता है। Do not think that someone's judging, but और उसकी- only focus on Lord Jesus. उसके बाद उसकी गवाही ये है, वो आती गई, वो कंसिस्टेंट होती गई, और एक दिन वो वेडनेसडे नाइट प्रेयर पर भी आ गई। So this girl was coming and she kept coming. One time she came to the Wednesday night prayer. उसने कहा, पास्टर ने पूछा, हाउ आर यू हियर? ये तो आपका समय था काम के ऊपर जाने का। And the pastor asked her that this is your work time, like you should be at your work. How come you are here? She said, उसने कहा कि मैंने वो काम छोड़ दिया है। And she said, I left that work. मुझे I किसी quit ने that नहीं job. कहा, पर मेरे अंदर से आवाज आई कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। No one suggested me to do that. It's from inside I heard the voice that I should quit that job. अगर खुदावन यीशु किसी को भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो हम कौन होते हैं किसी को इनकार करने वाले? हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? हम कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले? If Jesus Christ is accepting anyone, then who we are to judge? इसीलिए जब हम परमेश्वर यीशु को अपनाएंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा,
हमारे अंदर से वो गंदगी को निकालेगा। अगर उस समय वो औरत के सवाल का जवाब किसी और तरीके से मिलता, शायद वो अगले दिन कलीसिया में आती ही नहीं, शायद आज भी वही वो गलत काम कर रही होती, पर उसे अलाउ किया क्योंकि उस पास्टर को उन्हें पता था कि जो गंदगी है, जो मैल है, वो यीशु ही साफ करता है। That is why when we come to Lord Jesus Christ, the Holy Spirit comes inside us and then cleanse us. So he will come inside and cleanse us from inside. तो इसके बाद एक और सवाल होता है जो हमारे दिलों में होता है जब हम मसीह को अच्छे तरीके से नहीं जानते कि कैन वी गेट टू हेवन बाय गुड डीड्स एंड गुड वर्क्स? क्या हम अपने अच्छे कामों से स्वर्ग जा सकते हैं? मुझे पूछ रहा क्या हम अपने अच्छे कामों से स्वर्ग जा सकते हैं? Amen. No. जो हमारे अच्छे काम हैं वो हमें हेवन की कुर्सी अर्न नहीं करके देते। The good deeds doesn't earn the heaven, the chair in the heaven for us. अब जानना चाहते हैं कैसे आपको मिलता है वो? How can we get that? Let's open the book of Titus, chapter 3, verse 5. तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। Hallelujah. There's two things that we can learn from here. Hallelujah. कि उसकी दया के कारण हम जा सकते हैं और दूसरी बात कि उसने हमें न्यू क्रिएशन बनाया है। So there are two things that we can go to heaven and achieve that chair with His grace and with the newness and new creation in Him. जब पवित्र आत्मा को हम अपने अंदर आने देते हैं तो पवित्र आत्मा हमें न्यू क्रिएशन बनाता है। जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो चली जाती हैं। अगर हम फिर भी हम एतवार को चर्च आ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं, पर फिर भी हम उस गंदगी के साथ चल रहे हैं, तो देखिए अपने अंदर, क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा को आपने आने दिया? When the Holy Spirit come inside us, He will renew us from inside. But if you are coming to Sunday in the church and doing all the past things, then you should analyze that is the Holy Spirit in your heart, in your life? अगर हम स्वर्ग में अच्छे कामों की वजह चले जाते, if we could have gone to, if we could have the way to go to heaven with our own deeds, तो यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर अपने आप का बलिदान देना का कोई मतलब ना होता। so there is no meaning of the crucifixion. मसीह यीशु को क्रूस के ऊपर अपना जीवन देने की कोई जरूरत नहीं थी अगर हम अच्छे कामों से स्वर्ग को पा सकते। And there was no need for Jesus Christ to go on the cross if we could have gone to the heaven with our own deeds. उसने किया क्योंकि मुक्ति जो है वो एक तोहफा है, वो आपके चंगे कामों के लिए नहीं, पर वो एक तोहफा है जो मसीह यीशु के द्वारा हमें मिलता है। He did it because salvation is the gift. It is not by our own good deeds, but Lord Jesus did it for us to give us salvation. So हम चंगे काम क्यों करते हैं? Why we do good works? तो आत्मा हमसे करवाता है। हालेलुया। Because the Holy Spirit asks us to do. Then these two most important things वो इसलिए हैं कि हम बचाए ना जा सके पर हम बचाए गए हैं। Are you understanding? Not to be saved, but because we are saved. Not क्योंकि हम बचाए ना जा सके पर हम ऑलरेडी बचाए जा चुके हैं। इसलिए नहीं कि प्रभु हमें बचाए, पर इसलिए कि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी बचा लिया है। तो हमारा फर्ज है कि हम भलाई को बांटें, हमारा फर्ज है कि हम उसकी चंगियाई को आगे औरों के साथ बांटें। We are doing the good deeds not because we could be saved after doing the good deeds, but we are doing the good deeds so that we can distribute that salvation among others. And not to earn heaven, इसलिए नहीं कि हम स्वर्ग को पा सके, पर इसलिए कि वो जो हमारे अंदर रहता है वो दिख सके। It is not to earn heaven. We do not do the good works to earn heaven. We already have earned the heaven, but it is just so that His character can show from us. Do you know why? क्यों हमें ये चंगे काम करने चाहिए? क्यों हमारे जीवन से चंगाई बाहर आती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। जल्दी से हम वचन को खोलेंगे। जेम्स याकूब 2 verse 17। जेम्स chapter 2
verse 17. उसमें लिखा है, इंग्लिश में बोलता हूँ, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Good works are the fruit, not the root of salvation. Hallelujah. वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। Move on to the next one. वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। Hallelujah. हम चंगे काम परमेश्वर को पाने के लिए नहीं करते हैं। We do not do good deeds to have God in our life. हम तक करते हैं क्योंकि हमने उसे पा लिया है। We do it because God is already in our hearts. हम इसलिए नहीं करते कि हम स्वर्ग को पा सकें। We are not doing so that we can achieve heaven. हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्वर्ग हमारे अंदर से बाहर दिखता है। We are doing the good deeds because heaven is seen from us. हालेलुया। ये कुछ सवाल हैं जो हमेशा हमारे जीवनों में होते हैं चंगाई के बारे में लेकर, और अब हम वचन में जाएंगे खास, और हम देखेंगे जो गुडनेस है, जो चंगाई है, वो खुदावंद के स्वभाव से हम देखेंगे। Now we will see the goodness from the nature of Lord. भलाई जो है वो हम परमेश्वर के स्वभाव से देखेंगे। Psalms 145 verse 9 says as, the Lord is good to all, He has compassion on all He has made. The Lord is good to all, and He has compassion to all He has made. Do you know compassion क्या होता है? करुणा। खुदावंद की करुणा हर एक चीज के ऊपर है जो उसने खुद बनाई है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया, उसकी करुणा उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। किस किस को खुदा ने बनाया है? If you believe कि खुदावंद ने आपको बनाया है, हालेलुया, आप परफेक्ट हैं परमेश्वर में। मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में डाउट ना कीजिएगा। अपने जीवन में हम इस इंसानी शरीर में जीते हैं, इतना टूटा पड़ा है, अगर कोई कुछ कह भी दे तो हमारे दिल को लगता है, पर मैं बताना चाहता हूँ उस यीशु ने अपने दिल के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर हर एक चीज सही ताकि हम मुक्ति के वरदान को पा सके। You have been made by His hands and you're perfect in Him. If anyone says anything, you always get hurt, but Lord Jesus Christ, He has paid all the price for it. आपको पता है जब खुदावंद ने सारी सृष्टि को बनाया तो उसने क्या किया? जेनेसिस उत्पत्ति फर्स्ट में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि सृष्टि के प्रत्येक दिन के बाद परमेश्वर कहता है ये अच्छा है। So when Father God, He made the whole creation, He created the whole creation, every single thing when He created, every single day He said it is good. खुदावंद ने दिन बनाए, रात बनाए, पहला दिन बनाया, उसने कहा ये अच्छा है। When Father God created the day, He said it is good. उसने दूसरा दिन बनाया, उसने कहा अच्छा, तीसरा दिन बनाया, चौथा दिन बनाया, पांचवा दिन बनाया, छठा दिन बनाया, सातवां दिन बनाया, और खुदावंद ने कहा ये अच्छा है। हालेलुया। He created all the 7 days, and at the end of every day He said it is good. हालेलुया। हमें पता चलता है कि जो अच्छाई है, चंगाई है, the goodness, वो खुदावंद का एक स्वभाव है। That is the nature of God. So the nature of God is goodness. और उसके बाद खुदावंद जब सब कुछ देखा तो उसे लगा कि ये जो यहाँ पर अभी भी कमी है, बताना चाहता हूँ कि आप कितने you are so special, I'm going to tell you that today. So when He created everything, He said there is something that needs to be there. खुदावंद ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, And He made human Adam from His own hand, अपने स्वरूप के ऊपर बनाया, on His image, अपने हाथों से बनाया, with His hands, अपना सांस तक फूंक दिया। and He put His breath on His nostrils. थोड़ा सा पीछे जाकर सोचें, जब खुदावंद ने कहा ये सब कुछ सही है पर मैं इससे कुछ मिस कर रहा हूँ, उसके दिल में था कि मैं मिस कर रहा हूँ, खुदावंद ने हमें अपने दिल से निकाल कर अपने हाथों से बनाया। When we go a little bit back, there was like everything was there in the creation, but He was missing something. So from His heart, He made us. जो वो मिस कर रहा था, Whatever He was missing, जो आज से मिसिंग था, He was missing. वो आप सबने पूरा किया। That part we fulfilled. This is how special you are. Hallelujah. That much house. इतने हम special हैं परमेश्वर के लिए. अगर फिर भी नहीं पता If you don't even know, तो मसीह यीशु को देखना,
look to the Lord Jesus Christ. आप में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ही परमेश्वर ने सब चीजों की रचना की और शब्द ही इंसान का रूप स्वीकार कर कर धरती के ऊपर आया। To do what? To give you and I a life again. Hallelujah. बताना चाहता हूँ ये धरती के ऊपर खुदावंद का राज नहीं है। ये धरती के ऊपर खुदावंद का राज स्वर्ग में है। क्यों? बताना चाहता हूँ। अगर धरती के ऊपर खुदावंद का राज होता तो यहाँ पर बीमारियां ना होती। देख लेना, स्वर्ग में बीमारी नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में बुराई नहीं है, भेदभाव नहीं है, ऊंचे छोटे बंगले नहीं है, सबके लिए एक समान खुदा ने बनाया है। हालेलुया। एंड यू कैन अर्न मोर जब आप खुदा के साथ वफादारी में चलते हैं। हालेलुया। जितना आप खुदा के साथ वफादारी में चलते हैं उतना ही उससे ज्यादा ले सकते हैं। हालेलुया। He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is the Almighty God. वो प्रभुओं का प्रभु है, वो परम प्रधान परमेश्वर है। हालेलुया। हम जानते हैं कि खुदा बहुत भला है। We know that God is good. क्या आप मानते हैं कि खुदा भला है? Do you believe that He is good? हमने ये सुना होगा अपनी कलीसिया में that God is good all the time. God is good. We have heard, हमने सुना है कि परमेश्वर भला है, हमेशा के लिए उसकी भलाई है। Then बीमारियां क्यों यहाँ पर आती हैं? इंसानों के जीवन में कैंसर क्यों आता है? लोग कैंसर में क्यों मर रहे हैं? बीमारियों में क्यों लोग बार बार जा रहे हैं? So why there are sickness? Why there are major diseases? क्यों लोग महामारी में फंस रहे हैं? Why there are pandemics? अगर किसी से पूछोगे जो हर एतवार आता है, वो आपको बताएगा, एक जन उसको बोलेगा कि भाई साहब खुदावन जो है ना वो अलग तरीके से काम करता है, कई बार हमारी समझ में नहीं आता वो इस तरीके से काम करता है, ये शायद बीमारी है पर वो अलग तरीके से काम करता है। If you ask any believer, he will say that God, his thinking and the way he works is different. इसलिए तुम्हारे जीवन में बीमारी आई। That is why the sickness is in your life. Are you serious? क्या आप सीरियस हैं इस चीज में? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि खुदावंद अलग तरीके से इस्तेमाल करता है, बीमारियां आती जाती रहती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने परमेश्वर को जाना नहीं अभी तक। If you think that sickness are because God works the different way, that means you have not known the God yet. क्योंकि हमने ये वो पुराने नेम से पढ़ा, हम मूसा के जीवन से, दानियल के जीवन से, एलाइजा के जीवन से खुदावंद को जानने की कोशिश कर रहे हैं। So we are now trying to know God by the Old Testament, like the prophets of the Old Testament. We are just looking there. अगर खुदावंद को जानना है तो उसके बेटे की ओर देखो, उसका बेटा मसीह यीशु है, यीशु की ओर देखोगे तो खुदावंद को जानोगे। अगर बाइबल में से मुझे निकाल के बताइए कहां पर कहा गया है कि यीशु ने उस इंसान को बीमारी दी, कहां पर लिखा गया है कि यीशु ने कैंसर दिया, कहां पर लिखा गया है कि खुदावंद ने किसी को अंधा किया? बताएं। So if you want to know Lord, then you should focus on Jesus Christ, because He never gives sickness to anybody. हालेलुया। You can see in the word. हालेलुया। अरे अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर को तो मसीह यीशु को जानो, क्योंकि वचन में लिखा है Matthew 11:27 it says, Jesus says this, that no one truly knows the Father except for His Son. हालेलुया। परमेश्वर यीशु बोल रहे हैं मत्ती 11:27 में, उसके 27 में लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। Hallelujah. And that is how you know God, through His own Son Jesus Christ. Hallelujah. उसको, परमेश्वर को हम उसके पुत्र के वसीला से जान सकते हैं। तो फिर क्यों बीमारियां आती हैं? So why there are sickness? क्या हम अपने जीवनों में precautions ले रहे हैं? Are we taking all the precautions in our lives? क्या हम अपनी सेहत की टेक केयर कर रहे हैं? Are we taking care of our health? क्या हम सही तरीके से चल रहे हैं, अच्छा खाना पीना खा रहे हैं? Are we eating well? क्या हम सिर्फ शुगर के ऊपर फोकस किया हुआ है हमने? Are we just eating sweets? देखिए, अगर आप छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, I would like to give one small example.
आपने रेड लाइट निकाला, राइट? आपके पास लाइसेंस है पर आपने रेड लाइट निकाला You have the license, but you cross the red light, और उसके ऊपर लगा था कैमरा, and there was a camera on it. तो टिकट किसी को मिलेगी? So who's going to get that ticket? हालेलुया, नहीं समझ में? Do हालेलुया। do you understand? सो अगर गलती आपसे हो रही है If you are doing the mistake, तो आपको ही बिल पड़ेगा उसका। then you will be getting the fine. But then some of the knowledgeable people say that, oh, maybe this is the will of God. खुदावंद की ये मर्जी नहीं है किसी के लिए, वो नहीं चाहता कि कोई उसका बेटा बेटी जो है वो मौत में जाए, वो बीमारी में जिए, वो दर्द में जिए। He does not. That's not the God that I follow. वो परमेश्वर नहीं है जिसे मैं पूछता हूँ। हालेलुया। कुछ समझदार कहते हैं कि वो परमेश्वर की मर्जी है, but that's not the way it is. हालेलुया। So going back to the sickness, हम sickness के ऊपर वापस जाते हैं। So we will now go back. Sickness के ऊपर देखते हैं. तो Psalms उसका 100 पढ़ेंगे और ज़बूर 100 chapter और उसका 5 नंबर वचन पढ़ेंगे. And in English it reads as for the Lord is good and His love endures forever. परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा टीकर है. आए हम बोले सब मिलके. क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है. Amen. Amen. Receive it. Hallelujah. उसकी सच्चाई, the goodness of God is going to last you generations to generations. उसकी Hallelujah. सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है. Generations to generation it will last you. खुदा कभी बदलता नहीं. The God never changed. बताना चाहता हूँ, He is not the author of pain and sickness. He is the author of life and light. जो परमेश्वर है वो बीमारी का नहीं, वो जीवन और वो रोशनी का परमेश्वर है. आपको बताना चाहता हूँ कि जो sickness है वो कैसे इस धरती के ऊपर आई. How the sickness came into this world. हम ये पढ़ेंगे नहीं पर आपको समरी बताऊंगा. जेनेसिस चैप्टर 3 में इसके बारे में विशेष लिखा हुआ है और बाइबल ने साफ-साफ बताया है कि जो बीमारी है वो इस धरती के ऊपर इंसान के घिरने के द्वारा आई. हालेलुया. So here we see that in the Bible, Genesis 3 chapter, we will not read, but you can read later, that with the fall of human mankind, the sickness came into this world. उसमें लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिन भी आया, जो पाप है वो भी आया, पाप के साथ साथ मौत भी आई, उसके साथ साथ बीमारी भी आई, उसके साथ साथ टूटनापन भी आया. Here we see that the breakage with the sin, the sickness, the breakage, and then the downfall come. And our bodies are part of that brokenness. जो हमारे शरीर हैं वो टूट गया है उसके हिस्सेदार हैं. जो गिर चुका है उसके हिस्सेदार है हमारे शरीर. हालेलुया. And our bodies, our physical bodies are the part of that downfall. The brokenness. हालेलुया. और सफरिंग का मतलब ये नहीं कि खुदा मौजूद नहीं है. So the suffering doesn't mean that God is not present. उसका मतलब ये है कि खुदा रहस्यमय काम से एक गहरे तरीके से आपके जीवन में काम कर रहा है. It means that secretly God is working in your life. रोमियो उसका 8 उसके 28 नंबर वचन में लिखा है, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. जो खुदावंद है वो अपने चाहने वालों को, अपने प्यार करने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करता है. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं. आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि खुदावंद जो है वो दर्द नहीं भेजता. So God, He never sends the pain, पर वो उसे यूज कर सकता है आपको अपनी ओर खींचने के but लिए. He can use the pain to pull you towards Him. वो आपके विश्वास को बढ़ा सकता है ताकि हम अपनी फीलिंग्स से बाहर निकलकर अपने विश्वास के ऊपर चलना शुरू करें. So He will use the pain to increase your faith so that we can walk by faith. वो अपने सामर्थ को हमारी कमजोरियों में दिखाता है. And He will show His strength in our weaknesses. वो चंगाई को लेकर आता है. He brings healing. अगर वो आत्मिक हीलिंग है, वो फिजिकल हीलिंग है, वो इमोशनल हीलिंग है, इटर्नल हीलिंग है, वो खुदावंद लेकर आता है. He will bring the emotional, physical, eternal, spiritual healing. God doesn't waste suffering, He transforms it. वो जो हमारा सफरिंग है, जो हमारे हालात हैं, उनको बदल देता है, उनको यूज करके. हालेलुया. खुदावंद हमारे जीवनों को बदल देता है
इन बीमारियों को भी यूज़ कर बहुत से लोग हैं जो इन बीमारियों के दौरान जिनने प्रभु को खोजने की कोशिश की और उनके जीवन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हुए। ये नहीं कह रहा कि वो खुदावन को नहीं जानते थे, वो खुदावन को जानते थे, पर उन्होंने खुदावन के साथ चलने का मतलब सीख लिया जब उनके ऊपर ये बीमारियां, ये समय जो उनके ऊपर आया। So many sicknesses, in the sicknesses people they seek God and they find God in those situations. और इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर जाएंगे जो भलाई आत्मा से भरे जीवन का प्रमाण है। That goodness is the evidence of a spirit-filled life. If you want to write it down, you can. Goodness is the evidence of a spirit-filled life. जो चंगियाई है, जो भलाई है, वो आत्मा से भरे हुए जीवन को दर्शाती है। हालेलुया। So हम जल्दी से ये पढ़ेंगे। मैं किसी को बोलूंगा अगर कोई हिंदी में ये पढ़ सकता है, लूक चैप्टर 10 वर्स 30 to 37। यहाँ पर हम एक अच्छे सामरी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कहानी है जिसने जो खुदावंद यीशु ने यूज की, किसी को एज अ पैरेबल दिया था ताकि कोई इंसान उससे सीख सके। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे, अगर हमारे पास है तो आप पढ़ सकते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर एक याजक और लेवाई था जो धर्म के ज्ञान से भरे हुए लोग थे। हालेलुया। वो बाहर से तो चंगाई को जानते हैं, वो बाहर से तो धर्मी हैं, पर देखिए कि उन्होंने जब इंसान को वहां पर गिरा हुआ देखा तो उन्होंने कोई मदद नहीं की। मैं बताना चाहता हूँ कि ये 19 मील का फासला था वो जरीहो तक जाने का, जहां से वो निकला था 19 मील तक। और उस समय वहां पर सिर्फ रेगिस्तान वगैरह था, कोई भी आसपास नहीं था। और जब एक इंसान निकला जो याजक था, उसने देखा वो साइड से फिसल गया और उसके बाद लेवी आया ताकि वो उसने भी देखा और वो भी निकल गया। ये इंसान की बात हो रही है जो बाहर से चंगे हैं। हालेलुया। जो बाहर से चंगियाई में हैं। Here we see that this person is in difficulty, he has pain, but the Levi and the priest, they just walk by, because the goodness here we see and the righteousness in them is only seen from outside, not from inside. और वहां पर एक सामरी आया, हमने पढ़ा कि सामरी ने क्या क्या उसके लिए किया। 2 दिनार भी उसने उसकी टेक केयर की, उसने मलहम के ऊपर पट्टी भी लगाई, दाखरस भी लगाया और उसे ऑयल से अनोइंट भी किया और उसे उठा कर ले गया और एक छोटे से इन में सरा में उसने छोड़ दिया और अपनी जेब से उसने 2 दिनार दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय 1 दिन की कमाई थी 1 दिनार, और उस सामरी ने जो उसे जानता भी नहीं था उसने 2 दिनार उस सराय को दे दिए ताकि इसे वहां पर रख सके। और ये भी बोला कि अगर ये खत्म हो जाए तो मैं अगली बार आऊंगा तो तेरा जो है वो वापस कर दूंगा, जो मैं तुझे वापस दे दूंगा। So here we see that this Samaritan man, when he saw that this person is in pain and in need, so he just brought him to the inn. He had mercy on this person, and also he had given 2 dinar to the master of the inn, and he also told him, because that 2 dinar, because in that era the wages of 1 day was 1 dinar only, but he gave 2, and he said, if there is more needed, I will give it to you and I will return. हालेलुया। उसने ये भलाई का काम किया। उसने ये नहीं देखा कि कहाँ पर ये पड़ा है, पर उसने उसके दर्द को देखा, उसके अंदर से आवाज आई और उसने इस इंसान की
जिसे मार पीट कर वहाँ पर फेंक दिया गया था, उसकी मदद की। So he helped this person, because that goodness came from his own heart. बहुत से लोग यहाँ पर याजक और लेवाई के समान हैं, जो वचन को जानते हैं पर किसी को दर्द में देकर साथ में से निकल जाएंगे। There are so many people in this world. They are like these Levites and the priest who will see other people in pain, but they will just walk by. I want to tell you, मैं आपको चाहता हूँ कि ये खुद हम अपने आप से सवाल करें, क्योंकि I have been there too and I have done that too. It's not कि मैं बहुत ही महान हूँ, मैंने भी ऐसा किया है, पर जब हमारे जीवन में हम देखते हैं एक इंसान को जो मदद चाहता है, जो गिरा पड़ा है, जो चाहे वो एक हेल्पलेस बंदा है, कितनी बार हमने रुककर उस इंसान की मदद की, कितनी बार हमने रुककर उसे खाना दिया, कितनी बार रुककर हमने उसके लिए दुआ की। Can we ask this question to ourselves? Because so many times maybe we have done this, like the Levites and this priest, that we just walk by if someone is in need. If someone is in need, how many times we helped someone that we didn't जब know? हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, हमारा स्वभाव जो है वो बदलता है और हम दूसरों के लिए करुणा जो है वो दिखाते हैं लोगों के लिए। So when we are filled with the Holy Spirit, then we show that mercy for others. So भलाई सिर्फ अच्छे काम करना ही नहीं है। So the goodness is not only doing the good deeds. This is the nature of heart. ये दिल का एक स्वभाव है जो हमेशा दूसरे के लिए रुकता है, झुकता है और मदद करता है। So this is the nature from the heart, that if we see someone in help, we will just stop by, we will help them, and we will have that mercy for the person. और आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु हमारे लिए आया, वो रुका भी, वो बैठा भी, झुका भी और उसने हमारी मदद भी की। So here we see that Lord Jesus Christ, He came for us, He saw us in the pain, He stopped for us, He was there for us, and He just took us out from that pain. और उसके बाद भी खुदावंद कहता है कि मैं जा रहा हूँ पिता के पास ताकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेज सकूँ। God wants to be with you all the time. So even if when He came, He said, now that I am going, but I am sending another helper for you, because He wants to be with us for the whole time. Hallelujah. Hallelujah. हमें भी चाहिए कि हम जैसे सामरी रुका, झुका और उसने मदद की, हम भी जब खुदावंद हमें मौका दे तो हम भी वैसा करने पाएं। So if we have that opportunity, that if we see someone in help, we should stop by, we should also help the person. And this is the last and the most important part. This is the third point and the last and the most important that I believe in this word is that Jesus, the model of goodness. परमेश्वर यीशु भलाई का नमूना, परमेश्वर यीशु भलाई का एक आदर्श। हालेलुया। हमने देखा कि भलाई क्या है, लेकिन अब चलिए देखें कि भलाई का असली रूप कौन है। So here we see that what is goodness, but now what is the image of the goodness we will see. भलाई इस धरती के ऊपर एक रूप कहकर भी आई। हालेलुया। On this earth, the goodness came into this image, एक इंसान के शरीर में भी भलाई आई। and this goodness came into this person's body. यीशु के जीवन में जब हम देखते हैं, यीशु सिर्फ भलाई सिखाता ही नहीं था, वो स्वयं भलाई का जीवित उदाहरण था। So here when we see the life of Jesus Christ, He was not only teaching the goodness, but He was the example of the goodness. Hallelujah. He was the very embodiment of it. खुदावंद यीशु खुद ही भलाई था। Amen. So हम एक्ट से पढ़ेंगे। हम आपके यहाँ पर वचन शेयर करेंगे थोड़े से, स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेंगे और ये इंग्लिश में सारे लिखे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। Go to the next slide. Yeah. So यहाँ पर लिखा है Acts जो है पहला Acts chapter 10 verse 38. इसमें लिखा है God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and He went around doing good and healing all who were under the power of the devil. हम प्रेरितों 10 उसके 38 पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Hallelujah.
और उसके बाद John chapter 10 verse 11, and I request all the worship to please come and join us. We will conclude this. John chapter 10 verse 11, वहाँ पर लिखा है that I am the good shepherd lays down his life for the sheep. अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। And we have seen this कि मसीह यीशु ने अपने प्राण अपनी भेड़ों के लिए दे दिए। वो ऐसा चरवाहा है जो 99 भेड़ों को छोड़कर एक ही खोज में चला जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आज एक उस भेड़ को चेंज करने के लिए आया है यहाँ पर। Hallelujah. God is here to change, to take that one sheep with him. Hallelujah. और उसके बाद हम John chapter 14 उसका 9 वर्ष से पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु कहता है that anyone who has seen me has seen the Father. यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। And in Hebrews chapter 1 verse 3 he says, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. Hebrews chapter 1 verse 3, इब्रानी की किताब पहला अध्याय 3 नंबर वचन। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीम के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। मसीह यीशु पापियों के लिए आया। I just read it today that Jesus, the Son of God, came to be the man so that man can be sons of God. मसीह यीशु खुदावंद का बेटा इंसानी बेटा बना ताकि इंसान के बेटे परमेश्वर के बेटे बन सके। और मैथ्यू उसका 11वां अध्याय और 29 नंबर वचन में लिखा है that for I am gentle and humble in heart. For I am gentle and humble in heart. उसके बाद तीतस में लिखा है 3:4-5 when the kindness and the love of God our Savior appeared, He saved us. और 1 Peter chapter 2 verse 22-23 He committed no sin when they hurled their insult at Him and He did not retaliate. हालेलुया। खुदावंद यीशु के जीवन में जब उन्होंने खोजा तो कोई पाप नहीं पाया। हालेलुया। उसके जीवन को दिन रात खोजा पर कुछ पा नहीं सके। There was no sin found in Lord Jesus. खुदावंद ने कहा लूका उसका 4 बाब 18 और 19 नंबर वचन में उसने खुदावंद यीशु ने खुद कहा that the Spirit of the Lord is on me to proclaim good news, to set the oppressed free. हालेलुया। खुदावंद ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर उतर आया है ताकि मैं सुसमाचार दे सकूं और जो बंदगी में है मैं उन्हें आजाद कर सकूं। हालेलुया। This word is for you all. If you are feeling oppressed, अगर आप अपने जीवन में oppression में हैं तो खुदावंद आपके oppression को लेकर जाने वाला है। हालेलुया। Receive it in your spirit because God is here to do something. Let's receive this word. Luke 4 verse 18 प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और हम इसी में जल्दी से फिनिश करेंगे कि यीशु जो था वो उसने कोढ़ रोगियों को छुआ और जब सब दूर भाग गए उसने उनके साथ रहा। So Jesus, he touched the leper and healed them. Even everybody else left them, but he was with the lepers. उसने भूखों को खिलाया। And he fed the hungry. उसने रोने वालों के साथ आंसू बहाए। And he wept with the crying. And टूटे हुए दिलों को जोड़ा। And he healed the broken-hearted. और आखिर में अपने प्राण को दे दिया उनके लिए जो उसके लायक भी नहीं थे। And lastly, he gave his life for those who didn't deserve it. क्रूस पर यीशु का बलिदान सबसे बड़ा काम था भलाई का। This was the great work of goodness, the crucifixion of Lord Jesus Christ. और ऐसा प्रेम जो कभी हम डिजर्व भी नहीं करते थे। And that love we never deserved. और वही पवित्र आत्मा And the Holy Spirit जो यीशु में था who was in Jesus Christ
अब आप में और मुझ में भी रहता है। and now He is in you and me. हालेलुया। आए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ आज, और उसके बाद हम वर्शिप में जाएंगे। May the Lord Spirit leads you today. परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे। हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आज आपसे यही पूछना चाहता हूँ, and with this question, क्या आप अच्छे काम कर रहे हो? are you doing good works? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, And also we would like to ask, क्या आप यीशु जैसे जी रहे हो? are you living like Jesus? क्या आपकी भलाई सिर्फ कन्वीनियंस, सुविधा के अनुसार होती है, Is your goodness according to your convenience, या पवित्र आत्मा के चलाई चलती है? or are you walked by Holy Spirit? क्या आप उस याजक जैसे हो जो दर्द देखकर निकल गया, Are you like the priest who saw the pain but he walked by, या उस मसीह जैसे जो रुका झुका और सब कुछ किया? or like Jesus Christ who stopped by and who helped? यीशु की भलाई आपके जीवन का दर्पण बन जाए, यही May मेरी दुआ है। the goodness of Lord Jesus Christ be the mirror of you. और पवित्र आत्मा आपके अंदर से वह भलाई निकाले And may the Holy Spirit bring that goodness inside from you, जो आपके दिलों से, जो आपके फैसलों में that from your hearts, that in your decisions, और आपके ऐसे प्रेम को जो अपने आप से बढ़कर सोचता है उसे दिखाए। that He show that love that you can think beyond yourself. And this is what I want to end it with today. कि यीशु भलाई करता हुआ आया था, अब वह चाहता है कि हम उसी भलाई को लेकर दुनिया में उसकी रोशनी बन जाएं। So this goodness Lord Jesus came with, and He wants us to be the light of the world with this goodness. आपकी अच्छाई कोई इंसान नहीं देखेगा, हालेलुया। आपकी अच्छाई जो है वो परमेश्वर आपका मसीहा देख रहा है। अगर आप दिल से परमेश्वर को फॉलो करते हैं, अगर आप रूह से भरे हुए हैं, तो वो पवित्र आत्मा जो है वो आपकी अगुवाई करेगा, हालेलुया। अगर आप रूह में बढ़ना चाहते हैं आज, तो मेरा विश्वास है कि खुदावंद आपको छुएगा, हालेलुया। क्योंकि ये जो 9 फल हैं परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे जीवनों में दिए हैं, खुदावंद चाहता है कि ये एक एक कर जो सारे फल हैं वो हमारे जीवनों के कैरेक्टर को बदले, हालेलुया। If you want to be more like Jesus, if you want to be like Jesus, if you want to actually have that compassion that Jesus had, you have to ask the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा को पूछना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के आगे रखना पड़ेगा, और मेरा विश्वास है कि खुदावंद आपके जीवन को बदलेगा, हालेलुया। खुदावंद घमंडियों के जीवन से घमंड को दूर करता है, और घमंड आपको परमेश्वर से दूर करता है। वही घमंड है जिसने शैतान को, लूसीफर को उस जहान से नीचे गिरा दिया। अगर वो प्राइड आपके जीवनों में है, तो मैं चाहता हूं कि अंदर अपने आप एक बार अंदर को देखें और खुदावंत को दें, और परमेश्वर आपके जीवन से इस प्राइड को लेगा। खुदावंत के आत्मा के द्वारा आपके जीवन में ये महान कार्य होगा, हालेलुया। आए मेरे साथ दुआ करें, और उसके बाद हम वर्शिप टीम को लीड करने देंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए वो सब कुछ किया जो कोई इंसान नहीं कर सकता था।